Good evening, I am Garima. This is Jago Himachal 365 TV. डर के नहीं डट के, and you are watching Hillcrest News. Let's start with the headlines. BJP workers standing with people during COVID-19 opposition leader visible in virtual press meets. India has given befitting response to those who conspire against it. Two men caught on camera throwing COVID patient's body into river in UP's Balrampur. Free education rupees 10 lakh ad for COVID orphans. Country fighting COVID-19 with all its strength. Light rain thunderstorm likely in Delhi for next 4 days, says IMD. Now news in detail. BJP workers standing with people during COVID-19 opposition leader visible in virtual press meets. BJP President JP Nadda took a dig at the opposition, saying while BJP workers are carrying out relief work amid the COVID-19 pandemic, the opposition party have gone into quarantine. Party workers in 1 lakh villages and hamlets are serving the needy to mark the occasion, Nadda said, accusing the Congress of trying to break the morale of the union government in its fight against the pandemic and calling the coronavirus vaccine as Modi's vaccine. Nadda said now they are screaming for vaccines. India has given befitting response to those who conspire against it, says PM Modi. Prime Minister Narendra Modi on Sunday said India has witnessed well-rounded progress and development during the last 7 years against odds and has given a befitting response to those who conspire against it. Modi government has completed 7 years since it assumed the reign in 2014. In his monthly ratio address Mann Ki Baat, Modi said that during the last 7 years, the country demonstrated its resolve to stand up to international pressure and armed force determination to secure the borders. Two men caught on camera throwing COVID patient's body into river in UP's Balrampur. Two men, one of them wearing a PPE kit, were caught on tape rolling down a coronavirus patient's body from over a bridge into a river in Uttar Pradesh, a Balrampur district. The video was shot by some people who were driving by the spot. After the visual surfaced, police registered a case. Balrampur Chief Medical Officer Bijay Bahadur Singh on Sunday said the body has been identified as that the Premnath Mishra, a resident of Sauratgarh in UP's Siddharth Nagar district. Premnath Mishra was hospitalized on May 25 after the contract COVID-19 and succumbed to the disease on May 28. The body was handed over to family members as per the COVID-19 protocols. In this video, which went viral on social media, it can be seen that the body was thrown into the Rapti river. He said a case has been registered at the Kotavli police station in this regard. Free education rupees 10 lakh ad for COVID orphans. This corpus will be used to give a monthly financial support and stipend from 18 years of age for the next 5 years to take care of the child's personal requirement during the period of higher education. On turning 23, the children will get the corpus amount as one lump sum for personal and professional use. The child will be given admission in nearest Kendriya Vidyalaya or in a private school as a day scholar. If the child is admitted to the private school, and the fee as per the RTE norms will be given from the PM Cares. The fund will also pay for expenditure, a uniform, textbooks and notebooks. A government statement said children aged 11 to 18 years will be given admission in any central government residential school such as Sainik School or Navodaya Vidyalaya. Country fighting COVID-19 with all its strength. Prime Minister Narendra Modi on Sunday addressed the 77th episode, his monthly ratio program Mann Ki Baat, where he said that the nation is fighting the COVID-19 pandemic with all its strength. During the second wave of COVID-19, a major challenge was to supply medical oxygen to remote areas. To counter challenges that the country faced, cryogenic oxygen tankers helped by working on war footing and saved the lives of lakhs of people. The Prime Minister said, light rain thunderstorm likely in Delhi for next 4 days, says IMD. Residents of Delhi are expected to get respite from scorching heat as the national capital is likely to receive light rain over the next 4 days, the Indian Meteorological Department IMD said. The national capital may witness light rain on Monday and very light rain on Tuesday, Wednesday and Thursday. According to the Met Department, the maximum temperature during this period is expected to be around 38 to 39 degrees Celsius. Thank you and stay connected with Hillcrest.
हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I'm Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं मोनिका राणा। यह है जागो हिमाचल 365, डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट न्यूज चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। हमीरपुर जिला में 18 से 44 वर्ग आयु वर्ग के लोगों का 31 मई को होगा कोविड-19 टीकाकरण। सीएसडी कैंटीन हमीरपुर में 1 जून से बुकिंग पर मिलेगा सामान। 31 मई से स्लॉट बुकिंग प्रारंभ। मनाली में लकड़ी के पुल से फिसले ससुर बहू। ब्यास नदी में बहे एक का शव मिला, दूसरे की तलाश। कुल्लू में कोरोना की दूसरी लहर से अब तक 131 लोगों की मौत। सरकार ने की दाह संस्कार की व्यवस्था। विकास का पहिया चलाने के लिए प्रशासन प्रवासी मजदूरों को जारी कर रहा कर्फ्यू पास। कुल्लू पहुंचने लगे कामगार। नादौन की नरिया पंचायत के चौकी राजपुता गांव में एक युवक ने दूसरे युवक पर खुखरी से किया हमला। अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर जिला में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को 31 मई को होगा कोविड-19 टीकाकरण। हमीरपुर जिला में 31 मई 2021 को 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का कोविड-19 टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए 15 सत्र सभी स्वास्थ्य खंडों में आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि यह सत्र डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के अतिरिक्त स्वास्थ्य खंड टोणी देवी के अंतर्गत टोणी देवी मंदिर परिसर, पीएससी कुठेड़ा, भौरज खंड के पीएससी करोटा एवं पीएससी मैड, बड़सर खंड के नागरिक अस्पताल बड़सर, सीएससी बिजड़ी व पीएससी भोटा, नादौन खंड के नागरिक अस्पताल नादौन एवं पीएससी धनेटा में, सुजानपुर खंड के नागरिक अस्पताल सुजानपुर, पीएससी चबूतरा व सीएससी चौरी तथा ग्लोड स्वास्थ्य खंड के सीएससी ग्लोड एवं पीएससी कांगो में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सत्र में 100 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कोविन पोर्टल पर पंजीकरण के उपरांत स्लॉट बुकिंग की है, उन्हें बुकिंग से संबंधित मोबाइल संदेश उनके फोन पर प्रेषित किया गया है। जिन लोगों के पास ये पुष्टि से संबंधित संदेश होगा, केवल उन्हें ही उस दिन टीके लगाए जाएंगे। ऑन द स्पॉट पंजीकरण की सुविधा फिलहाल नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अन्य वर्ग के लोगों को भी इन सत्रों में टीका नहीं लगाए जाएंगे। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने सहयोग बनाए रखें। सीएसडी कैंटीन हमीरपुर में 1 जून से बुकिंग पर मिलेगा सामान। 31 मई से स्लॉट बुकिंग प्रारंभ। आरट्रैक पूर्व सैनिक कैंटीन हमीरपुर के मैनेजर लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेश ठाकुर ने सूचित किया है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की दृष्टिगत और प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों अनुसार सीएसडी का सामान 1 जून 2021 से सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बुकिंग पर ही दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बुकिंग एक दिन पहले 31 मई 2021 दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक टेलीफोन नंबर 01972 22 25 24 और मोबाइल नंबर 62 302 13 269 पर शुरू होगी तथा बुकिंग का समय हर दिन यही रहेगा। एक दिन में 100 कार्ड धारकों की ही बुकिंग होगी और भुगतान केवल क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ही किया जाएगा। बिना बुकिंग के किसी को भी कैंटीन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बुकिंग अलग अलग स्लॉट्स में ही होगी। हर स्लॉट आधे घंटे का होगा और प्रत्येक स्लॉट में केवल 10 लोगों की ही बुकिंग होगी। पहले स्लॉट की बुकिंग 9 बजे से 9:30 बजे तक होगी, जिसमें केवल 10 लोगों को ही कैंटीन परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। प्रत्येक स्लॉट के लिए कूपन दिए जाएंगे। उन्हीं के आधार पर कैंटीन में प्रवेश करना होगा तथा बिल भी कूपन के आधार पर काटे जाएंगे। ऐसे ही हर आधे घंटे के लिए 10-10 लोगों की बुकिंग होगी और 2 बजे तक केवल 100 लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने सभी पूर्व सैनिकों से अनुरोध किया है कि वे अपनी बुकिंग होने पर ही कैंटीन में आएं तथा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि कोई भी पूर्व सैनिक निर्धारित स्लॉट में उपस्थित नहीं होता है तो उसे दूसरे स्लॉट में कैंटीन परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कृपया अपने स्लॉट का खास ध्यान रखें और समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। सामान लेते समय मास्क पहने, कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें तथा कोविड के इस लड़ाई को लड़ने में अपना सहयोग दें। बिना मास्क के किसी को भी कैंटीन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा उक्त निर्देशों का पालन नहीं होने की स्थिति में कैंटीन को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा।
मनाली में लकड़ी के पुल से फिसले ससुर बहू, ब्यास नदी में बहे एक का शव मिला, दूसरे की तलाश। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली में दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ के पलचाल में ससुर और बहू लकड़ी के पुल से फिसलकर ब्यास नदी में गिरे और बह गए, जिसमें ससुर का शव बरामद हो गया है, जबकि बहू को ढूंढने के लिए सर्च अभियान चल रहा है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और सर्च ऑपरेशन कर रही है। अधिक जानकारी देते हुए एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि आज सूचना मिली थी कि पलचान के समीप 2 लोग नदी में बह गए हैं, जिसमें से एक का शव बरामद कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान पुणे रामपुत्र गंगूराम, गांव रुआर, डाकघर पलचान, जिला कुल्लू के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की पहचान आशा देवी पत्नी गोपाल कृष्णन, गांव रुआर, डाकघर पलचान, जिला कुल्लू के रूप में हुई है। कुल्लू में कोरोना की दूसरी लहर से अब तक 131 लोगों की मौत, सरकार ने की दाह संस्कार की व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में कोरोना काल में अब तक 131 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी के कारण मरने वालों के दाह संस्कार के लिए प्रशासन से पुख्ता प्रबंध किया गया है। कोरोना महामारी के कारण मरने वालों के दाह संस्कार के लिए प्रशासन से पुख्ता प्रबंध किया गया है, जिसमें अब प्रदेश सरकार की तरफ से दाह संस्कार के लिए लकड़ी की फ्री सुविधा प्रदान की जा रही है। जिला प्रशासन के द्वारा अंतिम संस्कार के लिए भूतनाथ बैली ब्रिज के समीप शमशान घाट स्थापित किया गया है, जहां पर शवों का दाह संस्कार किया जाता है। एसडीएम कुल्लू अमित गुलेरिया ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौर में ऑक्सीजन की सप्लाई और दूसरा कोरोना से डीसीएससी में प्रतिदिन मृत्यु दर रोज हो रही है। प्रतिदिन मृत्यु हर रोज हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से दाह संस्कार के लिए पूरी व्यवस्था की है और भूतनाथ वैली ब्रिज के नजदीक अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में लाइट और पानी की व्यवस्था की गई है। विकास का पहिया चलाने के लिए प्रशासन प्रवासी मजदूरों को जारी कर रहा कर्फ्यू पास, कुल्लू पहुंचने लगे कामगार। कुल्लू जिला में अन्य राज्यों से कामगार बुलाए जा रहे हैं, जिनके प्रशासन द्वारा पास बनाकर विकास कार्य को गति प्रदान की जा रही है। अभी तक कुल्लू में बाहरी राज्यों से 50 कामगार मजदूर कुल्लू पहुंच चुके हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल से मजदूर कुल्लू, बंजार, मनाली में पहुंच गए हैं। कुल्लू सर्कल के तहत 180 करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। इसमें सड़कें, पुल, भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी के चलते जिला में विभिन्न ठेकेदारों ने अपनी लेबर बाहर से मंगवाई है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग कुल्लू ठेकेदारों का सहयोग कर रहा है। नादौन की नरिया पंचायत के चौकी राजपुता गांव में एक युवक ने दूसरे युवक पर खुखरी से किया हमला। थाना क्षेत्र नादौन के अंतर्गत नरिया पंचायत के चौकी राजपुता गांव में एक युवक ने दूसरे युवक पर खुखरी से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। नादौन थाना में दी अपनी शिकायत से पीड़ित करनेल सिंह पुत्र अमर सिंह ने बताया कि शनिवार सायं जब वह अपनी बाइक पर सवार होकर नोहंगी बाजार की ओर जा रहा था, तो उसके गांव के ही सुमित कुमार ने उसकी बाइक रोककर उससे बहस आरंभ कर दी। कर्नैल ने बताया कि इसी दौरान सुमित की बेटी अक्षय ने अचानक पीछे से आकर उसके सिर पर खुखरी से हमला कर दिया, जिसके कारण वह वहीं गिर पड़ा। उसने बताया कि आसपास के लोगों ने उसे बाप बेटे के चंगुल से बचाया। कर्नैल ने आरोप लगाया है कि इससे पूर्व भी आरोपी उसके घर हथियारों से लैश होकर हमला कर चुके हैं, जिसके बारे में भी वह पुलिस को शिकायत कर चुका है। कर्नैल ने बताया कि इस हमले में उसके सिर पर गहरी चोट आई है। कर्नैल ने बताया कि उसकी पत्नी का गंभीर रोग के कारण ऑपरेशन हुआ है और उसका उपचार कराने उसे हर माह पीजीआई जाना पड़ता है। उसे आरोपियों से जान का खतरा होने का अंदेशा जताया है। उसे पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में थाना प्रभारी नीरज राणा ने बताया कि पीड़ित को मेडिकल करवाकर मामला दर्ज करके आगे छानबीन की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। धन्यवाद। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquest News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज के साथ।